Very good afternoon to all of you. Today we will discuss on crime, meaning, definition, and nature. Before discussing the crime, it is necessary to discuss what is the criminology. The criminology, the Latin, it derives from the Latin word crimen. Crimen means the acquisition, and Latin word logia means study of. So the criminology means study of crime. It is also called a study of law enforcement and criminal justice system. Study of crime includes its causes, responses by law enforcement, and methods of prevention. The object of criminology is to create a peace, law and order in the state. So ये criminology क्यों है और क्यों सीखना चाहिए, बेसिक क्वेरी है. Criminology क्या है? It is a study of law enforcement. It is study of criminal justice system. ये और क्या स्टडी करता है? It studies the causes, responses by law enforcement and methods of prevention. How to prevent that crime. और ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या है? टू क्रिएट पीस, लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट. बेसिकली दो स्टेट की जवाबदारी होती है. देयर आर टू ड्यूटीज. वन इज द इंटरनल सिक्योरिटी एंड सेकंड इज द एक्सटर्नल सिक्योरिटी. फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी वी हैव द फोर्सेस एंड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी वी हैव द पुलिस मशीनरी, वी हैव द लॉ एनफोर्समेंट अदर एजेंसीज लाइक द CID, CBI, वी हैव जजेस who will implement that law, who will give the direction to the law enforcement agency. So during this internal security, so ये जो स्टडी है कि कैसे क्राइम क्या होता है, क्राइम के रिजल्ट्स क्या है और उसे कैसे रोका जाए ताकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग रहे, उसको कहते हैं क्रिमिनोलॉजी. सो इट इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम द एक्विजिशन and logia means the study of, so the criminology means study of crime. अब ये स्टडी ऑफ क्राइम को लोग रॉन्ग भी बोलते हैं. सो किस प्रकार के रॉन्ग? रॉन्ग बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक रॉन्ग एंड प्राइवेट रॉन्ग. सो व्हाट इज रॉन्ग? रॉन्ग मीन्स बाय कमीशन ऑफ द एक्ट, मीन्स बाय डूइंग एक्ट विच आर फॉरबिडन, और बाय ओमिशन ऑफ एक्ट, मीन्स बाय नॉट डूइंग द एक्ट विच आर ड्यूटी बाउंड टू डू. Definition of act or omission is given under section 33 of IPC. What section 33 of IPC state? Section 33 of IPC state that act or series of act means single act, and omission or series of omissions means single omission. So wrongs may be a public wrong or private wrong. A public wrong, so this is by wrong can be done by commission of the act or by omission of the act, and wrong can be public wrong or private wrong. पब्लिक रॉन्ग यानी क्या? पब्लिक रॉन्ग यानी इंजरी टू द पब्लिक. पब्लिक रॉन्ग यानी ऑफेंस अगेंस्ट द कम्युनिटी और सोसाइटी which result in social disorder. So what is a crime? Crime is the public wrong. और प्राइवेट रॉन्ग क्या है? प्राइवेट रॉन्ग मीन्स इंजरी टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. सो प्राइवेट रॉन्ग यानी इट इज अ इंडिविजुअल, इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द इंडिविजुअल. अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खेत में इंक्रोचमेंट कर देता है, सो इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द इंडिविजुअल. It is not wrong against the society. It is not wrong against the public. हाँ, but अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो that murder will not be count of the law against that individual person, but it is wrong against the individual person, but it is called a wrong against the society. क्योंकि सोसाइटी में पीस रहना चाहिए, सोसाइटी प्रॉपरली काम करना चाहिए. इसलिए जरूरी है कि कोई भी किसी का मर्डर, कोई भी किसी की हत्या यूं ही ना कर दे, कोई भी किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को भी ना हो. वो सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और आफ्टर adopting a due process of law ही रहना चाहिए. So what is the public wrong? Public wrong means injury to the public, offense against the community or society which result in social disorder. So what is a crime? Crime is the public wrong. It is not a private wrong. Definition of crime. Definition of crime. Crime, as we have said, crime is the public wrong. A definition of crime has been given by the various jurists. कुछ definition हम देख लेते हैं. सर विलियम ब्लैकस्टोन का कहना था, व्हाट इज अ क्राइम? क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायोलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, आइदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग. देन व्हाट इज अ क्राइम? सर जेम्स स्टीफन ने कहा, क्राइम इज एन एक्ट व्हिच इज बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड रिवॉल्टिंग टू मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. सो
विलियम ब्लैक स्टोन के डेफिनेशन में और जेम्स स्टीफन के इसमें जेम्स स्टीफन ने एक वर्ड और ऐड कर दिया, मोरल सेंटिमेंट, जबकि विलियम ब्लैक स्टोन का कहना है कि कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ द पब्लिक लॉ, पर यहां पे ये बोलते हैं कि मोरल सेंटिमेंट के अगेंस्ट में भी अगर होता है तो इट इज आल्सो क्राइम। सर केनी का कहना है क्राइम्स आर रॉन्ग्स whose sanction is punitive and in no way remitable by a private person, but it is remitable by the crown alone if remitable at all। क्योंकि क्राउन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में सबसे बड़ी अथॉरिटी थी, तो सर केनी ने कहा कि सिर्फ क्राउन को अथॉरिटी है कि उस जो क्राइम होता है उसके सैंक्शन, जो क्राइम होता है उसको रिमिसिबल करना या फिर उसको छोड़ देना, ये जो अथॉरिटी है सिर्फ क्राउन की है। अदरवाइज क्राउन ऐसी इट इज सच टाइप ऑफ रॉन्ग जिसका सैंक्शन पुनिटिव होना चाहिए और रिमिसिबल नहीं होना चाहिए बाय एनी प्राइवेट पर्सन। सो इट विल बी रिमिसिबल ओनली आफ्टर अडॉप्टिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो ऑल जो इन्होंने तीनों ने बताया हुआ है या मैक्सिमम जूरिस्ट ने बताया हुआ, व्हाट इज द क्राइम इन शॉर्ट, इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी और इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द मोरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब मोरल सेंटिमेंट में ये भी है कि सपोज खून करना ये क्राइम, यानी खून करना ये अगेंस्ट द मोरल सेंटिमेंट है, तो क्राइम खून करना ये अगर इसमें लिखा हुआ नहीं भी है, इफ इट इज ऑल नॉट अगेंस्ट द पब्लिक लॉ और नॉट इट इज रिटन, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज अ क्राइम। डेफिनेशन ऑफ क्राइम इज नोवेयर मेंशन। क्राइम की डेफिनेशन आईपीसी में, सीआरपीसी में कहीं पे भी दी हुई नहीं है, बट द वर्ड ऑफेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्राइम। वर्ड क्या यूज हुआ है, ऑफेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्राइम। और ऑफेंस क्या है, तो सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी कहता है ऑफेंस मींस एनीथिंग व्हिच इज पनिशेबल बाय दिस कोड। ऑफेंस क्या है, तो ऑफेंस कुछ भी, हर एक चीज है जिसको ये कोड आईपीसी बोलता है कि इट इज पनिशेबल, तो वो क्राइम है, वो ऑफेंस है। और ऑफेंस की डेफिनेशन किसमें दी हुई है, सेक्शन 2 सब क्लॉज एन ऑफ सीआरपीसी। ऑफेंस मींस क्या, ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871। so offense क्या है, offense से कोई भी एक्ट है या ओमिशन है, वो क्या है, मेड पनिशेबल है, पनिशेबल बाय लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। आपको पता है कि क्राइम ये सोशल डेफिनेशन है, इट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट मे वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। तो जो आज क्राइम है हो सकता है कल ना हो, जो कल क्राइम नहीं था हो सकता है वो आज हो। एक जमाना ऐसा था जब बाल विवाह ये क्राइम नहीं हुआ करता था, पर वो आज क्राइम है। तो उस जमाने में वो क्राइम नहीं था, पर आज के लॉ के हिसाब से वो क्राइम है। इसलिए टाइम बीइंग ये जो वर्ड है जो सीआरपीसी में डाला हुआ है, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। लाइक कैटल ट्रेसपास, पहले कैटल जो हमारा जो ये है कृषि प्रधान देश था, और कैटल ट्रेसपास को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो उसमें ये बोला गया है कि ये जो है एक्ट और ओमिशन के सिवा अगर कोई भी कंप्लेंट कैटल ट्रेसपास एक्ट में भी आती है तो इट इज आल्सो क्राइम। नबी बताया क्राइम क्या है, क्राइम इज अ सोशल फेनोमेना, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हो सकता है जो चीज इंडिया में क्राइम है वो अमेरिका में क्राइम ना हो सकता है जो चीज पहले हमारे यहाँ पे क्राइम नहीं थी, और एग्जांपल सती की प्रथा में एक जमाने में क्राइम नहीं थी, बाल विवाह एक जमाने में क्राइम नहीं था, वो आज क्राइम है। तो ये टाइम टू टाइम वेरी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आज जो क्राइम है वो कल जाके क्राइम ना दे। एडल्ट्री ये इंडिया में क्राइम है, पर हो सकता है कि ये क्राइम अमेरिका और ब्रिटेन इसमें ना हो, अमेरिका में वो क्राइम ना हो। So it may vary from place to place as well as from time to time and society to society. अब क्राइम का नेचर कैसा है? क्राइम के नेचर है कि ये वो एक सोशल फिनोमेना है, उसके नेचर में ये कि वो सोशल फिनोमेना है। सेकंड माला उसका ये क्या नेचर क्या है, इट्स अ माला इंसे। माला इंसे मींस क्राइम व्हिच इज इनहेरेंटली एविल। एक तो एक क्राइम वो है जो इनहेरेंटली एविल है, और दूसरा क्राइम वो है जो माला प्रोहिबिटम है। मींस वो इनहेरेंटली एविल तो नहीं है,
बट इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी वो प्रोहिबिट किया हुआ है लॉ ने। फॉर एग्जाम्पल क्राइम विच इज इनहेरेंटली एविल, यानी जो मोरली एविल है वो क्या है? मर्डर, ये एविल है। आई बीइंग शो इंसेप्शनली एविल है। रेप, इट इज इंसेप्शनली एविल है। इस क्राइम को कहेंगे मालाइंसी, बट प्रोहिबिटम लाइक पोलोगेमी। पोलीगेमी ये ऑफेंस है सिर्फ हिंदू लॉ में, बट मोहम्मदियन लॉ में ये ऑफेंस नहीं है, वहां पे अलाउड है। सो विथ रिस्पेक्ट टू द कम्युनिटी ऑफ द हिंदू पीपल इट इज अ क्राइम, with respect to of the community of Mohammedan people it is not crime. नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एक क्राइम है तो वो क्राइम होगा। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एक क्राइम नहीं है तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ क्राइम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम? हमेशा ये कंफ्यूजन रहा है कि टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। सो हमने पढ़ा कि रॉन्ग्स में बी अ पब्लिक रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग। प्राइवेट रॉन्ग इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट इज वन ऑफ द सिविल रॉन्ग। जो बहुत सारे सिविल रॉन्ग है उसमें से एक जो रॉन्ग है वो टॉर्ट है। जो टॉर्ट है ये कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। ड्यूरिंग द जजमेंट, ड्यू टू द जजमेंट इज एस्टैब्लिश्ड लॉ, इट इज नॉट कोडिफाइड लॉ। इसलिए क्राइम क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल जो है वो कहाँ पे ये होता है, ट्राइड होते हैं, वो क्रिमिनल कोर्ट में ट्राइड होते हैं, यानी उनको क्रिमिनल कोर्ट में लिया जाता है। इट इज रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी एंड स्टेट, देयरफॉर बर्डन लाइज ऑन स्टेट। जब भी कोई क्राइम होता है तो बर्डन लाइज होता है स्टेट के ऊपर कि वो प्रूव करे कि ये क्राइम हुआ है, इस व्यक्ति ने वो क्राइम किया है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ है टू पनिश द क्रिमिनल्स, टू एस्टैब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी। बट ऑब्जेक्ट ऑफ टॉर्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ टॉर्ट ये है टू प्रोवाइड रेमेडी और रिलीफ टू इंजर्ड पर्सन। एंड जिस पर्सन के खिलाफ रॉट हुआ है, जिस पर्सन के खिलाफ सिविल रॉन्ग हुआ है, उसको रिलीफ मिले, ये ऑब्जेक्ट है टॉर्ट का। क्योंकि टॉर्ट ये सिविल रॉन्ग है, ये ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज नहीं है। टॉर्ट कहां पे ट्राइड होता है? इट इज ट्राइड इन द सिविल कोड, उसकी केसेस चलती है सिविल कोड में। इट कॉजेस इंजरी और डैमेजेस टू इंडिविजुअल, और बर्डन लाइज ऑन द एग्रीव्ड पर्सन। जो एग्रीव्ड पर्सन जो बोलता है कि हाँ मुझे इन व्यक्ति से हानि हुई है, उसको प्रूव करना है कि सही में हानि हुई है या नहीं हुई है। पर क्रिमिनल लॉ में, क्राइम में जो विक्टिम है, विक्टिम को कुछ प्रूव नहीं करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। तो स्टेट को प्रूव करना है कि वो क्राइम हुआ है। सो ये डिफरेंस है टॉर्ट और क्राइम में। क्रिमिनल लॉ आर कोडिफाइड बट टॉर्ट इज नॉट कोडिफाइड एंड लॉ डेवलप थ्रू जजमेंट। क्राइम इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। क्राइम क्या है? इट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। पूरी दुनिया के खिलाफ वो क्राइम, ये है, गुनाह है। बट टॉर्ट ये क्या है? ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन पर्सनम है। उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ ही गुनाह माना जाएगा, उसके अधिकारों का हनन माना जाएगा। टॉर्ट क्राइम होता है तो उसको माना जाएगा कि पूरी दुनिया के अधिकारों के हनन हुआ है। यानी क्या? यानी अगर किसी ने मर्डर किया है तो ही मस्ट बी ट्राइड। वो यहाँ पे इंडिया में हो, भाग गया हो, तो उसको लाके, क्योंकि वो ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज है, पीपल एट लार्ज है, वर्ल्ड एट लार्ज है, और वो क्राइम हुआ है, इसका मतलब वो व्यक्ति का राइट टू लाइफ हनन नहीं हुआ है। इट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। पूरी दुनिया के राइट केस में उसका ये हुआ है। But taught in infringement of right in person. Thank you very much. We will stop here today.